Hello students, in a first unit we learn about the charge particle at rest, theory of the charge particle at a rest, this is known as electrostatics. In a second unit we learn about the charge particle in a motion, the motion of the charge particle in a motion which produces the electric current. And in this unit we are going to discuss that motion of the charged particle produces the magnetic field around it. A current carrying conductor produces the magnetic field around it. This known as a magnetic effect of current. कोई भी एक कंडक्टर है तो अगर वो करंट कैरी करता है कंडक्टर carrying the current, suppose this is the XY is a conductor, XY carrying the current I, it produces the magnetic field around it. Magnetic field produced around the conductor. This current carrying conductor produces the magnetic field around it. This known as a magnetic effect of a current. And in this unit we are studying about the magnetic effect of the current. The current carrying conductor produces the magnetic field, and what is the direction of that magnetic field. To find out the direction of a magnetic field produced by current carrying conductor, we use the Ampere's subsuming rule, या Maxwell's corkscrew rule, या right hand thumb rule. These rules are used to find out the magnetic direction of the magnetic field produced by the current carrying conductors. So in this unit also we are discussing about the Biot-Savart law, which is used to find out the amount of magnetic field produced by the current carrying conductor. कितना magnetic field produce करता है और किसके ऊपर depend होता है. All these things are we going to discuss in the Biot-Savart law. How this law is used to find out the amount of magnetic field produced by the current carrying conductor. And in this unit again we are discussing about the application of the Biot-Savart law, that is a magnetic field due to the circular current carrying conductor. So let us start with this. What is the magnetic effect of the current? Just earlier I said the current carrying conductor produces the magnetic field around it. This known as a magnetic effect of a current. And first it was observed by the name of the scientist, that Oersted, who observed this that conductor XY carrying the current I, and this magnetic needle which was accidentally placed over the table. He was doing some experiments on the electricity, when he noticed that when there is a switch on a switch off, the current magnetic needle is get deflected. All you know that the magnetic needle get deflected only when the other magnet is present near to it, due to the property of the attraction or repulsion of the poles. But there was no any magnet, then why it is a deflected? That question comes to his mind. Then he start placing the this magnetic needle different position, reversing the current, so he had noticed that it is also deflected. Then he come to the conclusion that the current carrying conductor produces the magnetic field around it, and due to that magnetic field the magnetic needle is get deflected. This is the theory or Oersted's observation. Now they say amount of magnetic field produced
And what is the direction of the magnetic field? The direction of the magnetic field, we can find out by using this the Ampere swimming rule. Rules to determine the direction of the magnetic field. The first Ampere swimming rule, snow rule, both are the same. So first I will explain what is the snow rule. The snow stands for, this is the SNOW. The snow stands for the south. This is the direction. This stands for the north. And this is the over. And this is the west direction again. When current passes from the south to north. When current passes in the conductor south to north direction over the magnetic needle. This is the magnetic needle, is a small needle which is used to find out the presence of a direction of magnetic field, or presence of the field by the properties of a deflection. And over the magnetic needle, then its north pole is deflected toward the west. Once again I am repeating, when current carrying conductor passes in the direction of south to north over the magnetic needle, the north pole get deflected toward the west. So this rule is known as a snow rule. तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक, जब हमने बार मैग्नेट 10th क्लास में पढ़ा था तो क्या था, ये बार मैग्नेट, दिस इज द n पोल और ये s पोल. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड or field lines is a n to s outside the magnetic field and s to n inside the magnet. तो ये था, दिस इज द कंटिन्यूअस लूप और क्लोज लूप इन केस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो ये हमने पढ़ा था कि ये होगा डार्क. इसी तरीके से जो कंडक्टर है वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रहेगा, इसके लिए हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं और ये रूल पढ़ रहे हैं. अब ये दूसरा रूल यहाँ लिखा है एम्पियर स्विमिंग रूल. दिस इज आल्सो व्हेन इमेजिन द मैन इज स्विम्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. ये डायरेक्शन ऑफ करंट है और इसी डायरेक्शन में मैन स्विम कर रहे हैं. एंड मैग्नेटिक नीडल केप्ट अंडर हिम, उसके नीचे एक मैग्नेटिक नीडल है. सच दैट करंट एंटर्स टू हिज फीट एंड लीव्स फ्रॉम द हेड. मतलब करंट उसका फीट से एंटर कर रहा है और हेड से लीव कर रहा है. देन डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल टुवर्ड द हिज लेफ्ट हैंड और इट इज ए टुवर्ड द वेस्ट. सेम दोनों रूल एक ही है, याद करने में ये आसान है. स्नो रूल उसी को यूज करो. देन मैक्सवेल्स कॉर्क रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल. राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है, अगर उसको घुमाएंगे, जैसे कोई भी सरफेस के ऊपर अगर स्क्रू को प्रेशर देके घुमाएंगे तो उसका टिप क्या आता है, वो सरफेस के अंदर चला जाता है. और जो सरफेस के अंदर टिप चला जाता है, ये टिप है, वो सरफेस के अंदर अगर इसको घुमाएंगे तो अंदर चला जाएगा. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. एंड जो घुमाते रोटेशन करते थे, द रोटेशन इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड form around this a conductor in the form of circular concentric circular loops. As we go away from this conductor, magnetic field goes on decreasing. कितना होता है ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिर से एक बार समझ लो. राइट हैंड स्क्रू रोल क्या है, ये स्क्रू है. कौन सा राइट हैंड स्क्रू, जब हम किसी सरफेस पर रखेंगे, अगर मैं इसके ऊपर टच करता हूँ तो ये जो सरफेस के ऊपर रखेंगे, इसको अगर घुमाएंगे तो कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा. ये अंदर जाएगा, तो ये जो अंदर जा रहा है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. और जो घुमा रहा है रोटेशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज द राइट हैंड स्क्रू रूल. तो आई होप ये समझ गए होगा, आसान है. और उसके बाद राइट हैंड थंब रूल. तो राइट हैंड थंब रूल आसान है, ये 10th क्लास में हमने पढ़ा था. सपोज द करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग द करंट इन दिस डायरेक्शन. दिस टिप इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. होल्ड दिस कंडक्टर इन योर राइट palm, keeping the thumb erect in the direction of the current,
and this forefinger which is a wound curl around the conductor, it is indicate the direction of magnetic field. ये हमने पढ़ा है, आसान है. Thumb is in the thumb, keep the thumb erect in the direction of magnetic field, and this forefinger which is a curl around the conductor, this indicates the direction of magnetic field. अगर ये ऊपर जा रहा है तो इस तरीके से रहेगा, नीचे आता है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी रिवर्स. पहले कैसा था, क्लॉकवाइज था, और जब नीचे करंट मूव्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन देन इट बिकम्स ए एंटी क्लॉकवाइज. तो ये हमने अभी तक पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कंडक्टर के सराउंडिंग में. अब देखेंगे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है हमने पढ़ा, ये अलग अलग रूल्स है. अब कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कंडक्टर के सराउंडिंग में, उसके लिए एक लॉ दिया, दिस नोन एज ए बायोट-सेवर्ट लॉ. दिस लॉ इज नोन एज ए बायोट-सेवर्ट लॉ. और these are the name of the two scientists and who discovered the amount of magnetic field produced due to the current carrying conductor. यहाँ मैं इसको समझाता हूँ पहले. तो this is the suppose this है XY is a current carrying conductor carrying the current I and P is the point. यहाँ एक P point है which is at a distance. यहाँ P point पोजीशन वेक्टर R दूर है, कितना पोजीशन है R वेक्टर. यहाँ एक छोटा करंट एलिमेंट लिया मैंने, that current element is a DL, this is a I current, और this छोटा सा small element of the conductor is taken as a DL, this known as a current element, and this DL and R makes an angle theta with the DL and R is a position vector, DL is a small current element, and we have to find out the magnetic field at a point P. इस पॉइंट पे P के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर. अब ये थीटा वेरिएबल है, इसको 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, इट मूव कितना भी. तो यहाँ एक DL एलिमेंट लिया, तो ये क्या आएगा, DL एलिमेंट, और दिस इज the position vector R, and it makes the angle theta. So amount of magnetic field produced by due to the DL element is a dB. This is the dB is a magnetic field produced due to the DL element carrying the current I is directly proportional to the I मतलब कितना करंट उससे जाता है. It is also directly proportional to the DL element, length of this DL element. It is also directly proportional to sine of a theta, and it is inversely proportional to the 1 by this is a R square. So R square is a distance between the DL and the point P where magnetic field is to be calculated. तो ये हो गया ये बायोट-सेवर्ट लॉ. तो इसको अगर कंबाइन करेंगे, सो dB सभी टर्म्स को कंबाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी I DL sin theta divide by this is a or inversely proportional square of a distance. So this dB equal to K, proportionality constant K, IDL sin of a theta divided by R square. This known as a बायोट-सेवर्ट लॉ. चलो देखते हैं ये इसके फॉर्म में. हाँ, यहाँ देखो, दिस इज ये यहाँ दिखाई, दिस इज ए कंडक्टर और कैरिंग द करंट. इसमें से कितना करंट जा रहा है, I करंट जा रहा है. DL एक छोटा एलिमेंट लिया यहाँ, और ये दिस इज द पोजीशन वेक्टर, DL एंड R मेक्स द एंगल थीटा, एंड पॉइंट P यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है. सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी I, directly proportional DL, directly proportional dB is a directly proportional sine of theta, and inversely proportional to the 1 by R square. फिर आगे देखते हैं इसका. तो हमने अभी तक इसका क्या पढ़ा था,
तो ये पढ़ा कि dB इक्वल टू के आई dl साइन ऑफ ए theta divided by r square. So this k is known as a proportionality constant and its value is a mu0 divided by 4 pi, and this mu0 is a permeability. This is known as a permeability, and this permeability, that value mu0 divided by 4 pi, this equal to 10 raised to minus 7. और इसका यूनिट देखेंगे तो डीबी मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, टेस्ला, और ये मीटर इस साइड जाएगा तो ये डिवाइड यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर है तो ये मीटर स्क्वायर आएगा, और यहाँ कौन है, दो टर्म से हम फाइंड कर रहे हैं के का यूनिट, जिससे तो के इक्वल टू, और ये क्या आएगा एम्पियर करंट के लिए, डीएल के लिए और एक मीटर के साथ 1 मीटर जाएगा, सो ये होगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर. So this is the unit of a Tesla meter per ampere. Or this is a magnetic field. It is this amount of magnetic field produced. It is written in a vector form. So dB in a vector form. This equal to, we can write this is dB in a vector form. In a vector form. This is dB equal to be in a vector form. This is the mu0 divided by 4 pi I dl unit vector r cap divide by क्या आएगा r square. So r cap equal to, you know the unit vector r divided by r, or this is magnitude of. So dB vector dB equal to mu0 divided by 4 pi I dl cross, this is the r, dl and r, this is vector, and divide by r क्या आएगा q. So this is the cross product. So this is r dl sin theta आएगा, इसका r ही कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर बन जाएगा. दिस इज इन ए वेक्टर फॉर्म. तो चलो इसका डायरेक्शन देखते हैं, किस तरीके से इसका डायरेक्शन होता है. The direction of this magnetic field, which is produced using the Biot-Savart law, it is a direction. इसी पेज पे समझाता हूँ. Direction so direction is a, suppose this is a plane, one plane containing the dl and this is the position vector r. And this makes the angle theta, जैसे हमने पहले देखा. तो this is the one plane containing the one vector dl and another this is the r. तो ये जो वेक्टर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड रहेगा ये परपेंडिकुलर रहेगा. परपेंडिकुलर मतलब जस्ट परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, जहां हम देख रहे हैं उसके परपेंडिकुलर रहेगा. तो इसको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाना है तो डॉटेड लाइन से दिखाते हैं. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए dB परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द r एंड dl. समझ में आया ये? चलो आगे देखते हैं. सो हम पढ़ेंगे अभी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर. सो दिस यहाँ लिख रहा हूं मैं, एक डेरिवेशन देखेंगे. मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल. ये एक सर्कुलर कॉइल है और ये सर्कुलर कॉइल में मान लो ये सर्कुलर कॉइल है और इसमें से करंट I पास होता है. दिस करंट पासिंग I, इट इज परफेक्ट सर्कल I, and O is the center of the coil. This is the O is the center, and R is the radius of a, this is the coil. This is the position vector R.
नाउ वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा? एक्चुअली ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसके साथ क्या पूछते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन द बायोट-सेवर्ट लॉ, या स्टेट द बायोट-सेवर्ट लॉ एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। ये सिंपल एक क्वेश्चन है, लेकिन 3 मार्क्स के लिए बोर्ड में आता है, तो इसलिए हमें इसको ध्यान से देखना है। क्या 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 समझाया? तो ये सर्कुलर कॉइल है और उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा व्हेन इट कैरिंग द करंट आई। सो कंसीडर यहाँ दिस इज द वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ए बायोट-सेवर्ट लॉ का ये एप्लीकेशन है, बायोट-सेवर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन है ये। और यहाँ हमें पढ़ना है कि अगर ये कॉइल है और इसका अगर करंट आई कैरी करता है, ये करंट आई कैरी करता है, तो एट द सेंटर व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, कंसीडर ए स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl, ये एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट यहाँ dl कंसीडर किया। अब देखेंगे ये dl अगर यहाँ कंसीडर करते हैं तो ये कैसा रहेगा, टेंजेंट टू द सर्कल रहेगा और एंगल दिस इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। सो कंसीडर ये dl element and angle between dl and r is theta equal to 90 degree, because it is just like a tangent to the circle, theta equal to 90 degree. Apply the Biot-Savart law. This is a magnetic field produced due to this dl element, just dB equal to mu0 divided by 4 pi I dl sin of a theta divided by r square। यह बायोट-सेवर्ट लॉ यूज किया। साइन ऑफ ए 90 इक्वल टू कितना आएगा, 1, और देन रिमेनिंग टर्म्स dB इक्वल टू दिस इज mu0 डिवाइड बाई 4 पाई I dl divided by r square. This is the magnetic field produced due to this a small element dl की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये हमने यहाँ लिखा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना छोटा एलिमेंट dl की वजह से यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये लिखा। ये दिस द dl इज दिस द स्मॉल एलिमेंट यहाँ लिया। ऐसा ये पूरा सर्कल कितना dl एलिमेंट से बना है, दिस this circle, this loop, कौन सा loop, circular loop is made up of infinite number of this is the infinite number of this is the dl elements. So total magnetic field at center of coil equal to this is the taking the integration of a dB, this equal to b, integration dB is b equal to अब इंटीग्रेशन ऑफ ए mu0 डिवाइड बाई 4 पाई I dl डिवाइड बाई r स्क्वायर। अब यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, r भी कांस्टेंट है, I भी कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होने वाला, तो ये सभी कांस्टेंट टर्म मैंने बाहर लिया, तो ये आएगा mu0 डिवाइड बाई 4 पाई। ओके, दिस इज नॉट ए गुड, we can erase this term।
So this is the mu 0 divide by 4 pi. I भी कांस्टेंट है और ये r भी कांस्टेंट है क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कल ये चेंज नहीं हो रहा है. ये क्या चेंज हो रहा है? खाली dl, द इंटीग्रेशन ऑफ ए dl. सो टोटल इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या आएगा? यहाँ लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ए dl, मतलब टोटल लेंथ अगर सर्कल का देखेंगे तो ये सर्कल का पूरा टोटल लेंथ देखेंगे. दिस नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, ठीक है, तो लेकिन समझ लो. तो इसका देखेंगे तो कितना आएगा? 2 pi r, दिस सरकमफेरेंस. तो मैं dl की वजह से इंटीग्रेशन ऑफ dl की वजह से क्या लिखूंगा? 2 pi r mu 0 डिवाइड बाई 4 pi I in the bracket 2 pi r divided by ये r square. So 1 r get cancelled. The remaining terms, magnetic field B is equal to mu 0 divided by mu 0 I divided by pi get cancel हो जाएगा. ये 2 क्या आएगा? ये r. So this is the magnetic field at the center of a circular coil. ये इसका सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? व्हेन इट कैरिंग द करंट I इज इक्वल टू ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं तो ये बड़े ध्यान से पढ़िए. सो मैग्नेटिक फील्ड इट इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जो करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और रेडियस ऑफ द सर्कल बढ़ेगा तो इट इज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये घट जाएगा. तो इस तरीके से हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल. तो आसान है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिए इसको. अब दूसरा देखो, इसका हम पढ़ेंगे. ये भी एक एप्लीकेशन है बायोट-शॉर्ट लॉ का और वो एप्लीकेशन का लेकर हम इसको भी पढ़ना है. तो मैं इसको पहले डायग्राम पूरा कर लेता हूँ इसका. तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. कलर चेंज कर देते हैं इसका. ओके. द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल कैरिंग द करंट I. अब ये सर्कुलर एक कॉइल है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको ये करोगे तो खराब हो जाएगा. ये दिस इज द कॉइल, ये सर्कुलर कॉइल. अब ये कॉइल कैसा है? दिस इज जस्ट परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन. ये इस तरीके से कॉइल रखा है मैंने. और दिस इज द सेंटर ऑफ कॉइल, ये सेंटर ऑफ कॉइल है और ये पॉइंट P है, यहाँ एक पॉइंट P है. इस पॉइंट पे हमें क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. जब ये कॉइल करंट I कैरी कर रहा है तो इट इज कैरिंग द करंट I. दिस इज द कॉइल परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन and we have to find out the magnetic field at a point P which is a x distance. यहाँ दिखा है, this is the x distance from the center of a coil. Center is O, radius of the coil is A and the coil is carrying the current I in a clockwise direction. So this is the theory. ये इसकी वजह से इस एक्सिस पर यहाँ पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमें फाइंड करना है. दिस इज द वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ए बायोट-शॉर्ट लॉ. अब इसको हम क्या करते हैं? पहले एक बायोट-शॉर्ट लॉ के लिए क्या चाहिए? डीएल एलिमेंट चाहिए. तो हमने एक ये डीएल एलिमेंट लिया. अब यहाँ देखेंगे तो डीएल एलिमेंट और पी का डिस्टेंस कितना है? आर. इसको फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे? अंडर रूट, ये पाइथागोरस से आएगा. ये है और ये एक्स है तो दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये डिस्टेंस हो गया इसका. अब ये यहाँ देखेंगे तो ये कॉइल है और ये कॉइल के सामने ये यहाँ से आर एलिमेंट जा रहा है, आर एलिमेंट जा रहा है. तो ये कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन है और ये दोनों में एंगल कितना है? तो 90 डिग्री का एंगल है. इट इज इंडिकेटेड यहाँ. कहाँ से? तो ये डीएल एलिमेंट है. मान लो मेरे ये उंगली जो है, ये अंगूठा, ये डीएल एलिमेंट है और उसको ये यहाँ से रहता है. तो ये डीएल एलिमेंट और इसका जो एंगल है ये कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री. अगर तुम ये डायग्राम देखेंगे 2D में तो वो समझ में नहीं, लेकिन यहाँ दिख रहा है ये परपेंडिकुलर है स्क्रीन इस तरीके से. और ये जो मेरा छोटा अंगूठा ये डीएल एलिमेंट है और इसका ये जो देख रहे हैं ये आर है. तो ये दोनों का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री. तो ये एंगल 90, ध्यान रखना ये बात. और रेडियस कितना है इसका? ये है, दिस इज द रेडियस ए और दिस आर इज इक्वल टू, तो ये डिस्टेंस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर.
अब इसकी वजह से यहाँ ये डीएल एलिमेंट कंसिडर किया, ये डिस्टेंस पता है, एंगल पता है, तो यहाँ पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। दिस इज द अप्लाइड बायोट-सावर्त लॉ, दिस dB इक्वल टू μ0 डिवाइड बाई 4 पाई। करंट कितना कैरी करता है, आई है, आई, और लेंथ एलिमेंट कितना लिया, dl, और ये साइन ऑफ ए कितना लो, ये साइन ऑफ ए दिस इज 90 डिग्री डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका ये आर स्क्वायर नहीं, हाँ आर स्क्वायर, ओके, ये दिस इज द आर लिया है, आर स्क्वायर। सो ये दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ। तो इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, तो डायरेक्शन रहेगा कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर। मैंने फिर डीएल, ये छोटा अंगूठा डीएल है और ये आर है, तो इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, देखो ठीक से समझ लो, ये डायरेक्शन ये सब गड़बड़ करता है, अगर ये ठीक से समझ में नहीं आया तो ये गड़बड़ करेगा। सो दिस इज द कॉइल, ये कॉइल, और इसका ये दोनों को परपेंडिकुलर कौन सा, ये जो दूसरा पेन रखा है ये दोनों को परपेंडिकुलर इस तरीके से, मैं इसको ठीक से रखो, तो ये इसका परपेंडिकुलर, ये आर है, ये आर है और ये डीएल है, तो ये दोनों को परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। सो दिस इज द डीबी। तो एट द पॉइंट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डीबी। समझ में आया ये। और ये जो थीटा है, दिस इज द एंगल मेक्स एंगल थीटा, तो ये प्लस ये कितना होता है 90, और ये कितना होता है 90, इसलिए ये भी कितना है, ये भी थीटा है। So this dB is resolved into two component vector। अगर ये x है y डायरेक्शन में तो हम resolution of vector यूज करते हैं। So dB is resolved into two component along the angle dB cos theta and perpendicular, this is the dB sin theta। So ये वेक्टर को हमने रिजॉल्व किया, dB sin theta and dB cos theta। ये समझ में आया। तो ये मैग्नीट्यूड कितना हो गया, dl की वजह से इतना गया, और इसका डायरेक्शन ये और इसका ये रिजॉल्व किया। इसी तरीके से इसका डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में क्या आएगा, ये यहाँ एक डीएल एलिमेंट है, और इसका अगर मैग्नेटिक लॉ निकालेंगे तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ, दिस इज ड्यू टू दिस डीबी डैश इक्वल टू, इसकी वजह से यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसकी वजह से ये डीएल से। सो μ0 डिवाइड बाई 4 पाई आई डीएल डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये साइन थीटा या 90 लिखो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से कितना प्रोड्यूस होगा, तो इतना प्रोड्यूस होगा डीबी डैश। सो डीबी डैश मैंने यहाँ लिख रहा हूँ डीबी डैश, तो इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, ये भी परपेंडिकुलर रहेगा, प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड दिस इज द आर। अगेन दिस डीबी डैश इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट along the angle dB cos theta and this the angle is along this x axis dB sin theta। अब देखो dB का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो सेम आ रहा है, और cos theta, so the two vectors equal and opposite they are cancel each other, ये दोनों वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे, सभी रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा यहाँ से ऐड हो जाएंगे। कितना ऐसे ये कॉइल जो है ये कितना डीएल एलिमेंट से मिला है, छोटे छोटे डीएल एलिमेंट देखेंगे तो यहाँ का डीएल देखेगा तो उसका अपोजिट कौन है, यहाँ डायमेट्रिकली अपोजिट डीएल है, यहाँ का डीएल एलिमेंट देखेगा तो इसका डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ है। तो ऐसा इन्फिनाइट नंबर ऑफ डीएल एलिमेंट, ईच डीएल हैविंग ए डायमेट्रिकली अपोजिट ए डीएल एलिमेंट। सो सभी अगर ये करेंगे तो ये आएगा, क्या होगा, सो ऑल दिस विल गेट एडेड। So total magnetic field at this point, this equal to integration of a dB sin of a theta or sin of a phi। क्या है ये, sin phi। This is total magnetic field। समझ में आया। तो ये हम इसमें और पढ़ेंगे आगे, तो मैंने जो समझा है वही बात आएगा सभी ये। हाँ अब देखो मैंने लिखा था dB द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया dB μ0 डिवाइड बाय r, साइन 90 था इसलिए 1 लिखा नहीं, साइन इक्वल टू 90 वो समझाया।
फिर dB रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट dB cos थीटा एंड dB sin थीटा, वो भी समझ गए. सो डायमेट्रिकली अपोजिट साइड cos थीटा द कंपोनेंट आर ऑलवेज अपोजिट एंड इक्वल, कैंसिल. और टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB sin थीटा, यहाँ तक समझाया था. सो dB का वैल्यू लिखते हैं. सो दिस इक्वल टू द टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए dB sin थीटा और sin phi along the x एक्सिस. कहाँ ये x एक्सिस के अलॉन्ग है. तो ये इसका वैल्यू लिखते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ ए म्यू 0 डिवाइड बाई 4 पाई क्या है I dl साइन तो 90 हो गया डिवाइड बाई r स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ए फाई. देखेंगे तो क्या आएगा यहाँ. जस्ट बैक स्लाइड के ऊपर चले जाते हैं. अरे साइन ऑफ फाई, यहाँ देखेंगे साइन ऑफ फाई तो क्या आएगा. साइन फाई इक्वल टू ये एंगल में देखो कॉस एट अपोजिट डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज. तो दिस साइन फाई अगेन मैं लिख रहा हूँ यहाँ साइन फाई दिस इक्वल टू ए डिवाइड बाई आर. तो ये वैल्यू हम आगे लेंगे साइन फाई का. तो साइन फाई दिस वैल्यू ए डिवाइड बाई क्या लिया आर. अब इसमें से कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कांस्टेंट है. तो ये सब वैल्यूज हम ले लेंगे. तो ये इक्वल टू बी इक्वल टू म्यू 0 कांस्टेंट टर्म बाहर लेंगे, करंट कांस्टेंट है. और दिस इज द 4 पाई और आर भी रेडियस है तो ये आएगा आर क्यूब. और ये क्या है, ये इज ए रेडियस ऑफ सर्कल, दिस आल्सो कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ ए dl. So B equal to magnetic field mu 0 divided by 4 pi I a r cube और dl का क्या है 2 pi a, क्योंकि रेडियस हमने r नहीं लिया तो ये लिया है इसलिए मैंने यहाँ ये लिखा. ओके देन यहाँ भी दिस इज एक्चुअली इट इज रिटन हियर I mu 0 I 2 pi a into a. दिस इज द करंट I और ये भी आई है और डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब का वैल्यू लिखना बाकी है तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ. तो ये B इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 डिवाइड बाई 4 पाई I a 2 पाई a डिवाइड बाई आर क्यूब. आर का वैल्यू आया था अंडर रूट था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और रेस टू 3/2, क्योंकि यहाँ क्यूब है वो अंडर रूट था 1/2 यहाँ लिखा मैंने. तो ये हो गया दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी, यहाँ लिखा है दिस इज इक्वल टू. अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पाई से तो ये 2 बन जाएगा तो ये 2 आ गए यहाँ. तो मैं दूसरा कलर से करेंगे. सो यहाँ दिस B इक्वल टू यहाँ से ये डिवाइड करो तो ये 2 जाएगा तो ये आ जाएगा म्यू 0 डिवाइड बाई 2 पाई भी कैंसिल हो गया और यहाँ I इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई I इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2. तो यह हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P डिस्टेंस x फ्रॉम द सर्कुलर लूप विच इज कैरिंग द करंट I. तो आसान डेरिवेशन था तो ये लिख लीजिए अपना कॉपी में. अब इसका कुछ स्पेशल केसेस दिखते हैं. इसके कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे. अब देखो एट व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो वो क्या आया था दिस विल बी है B इज इक्वल टू म्यू 0 डिवाइड बाई 2 I ये था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2.
सो व्हेन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो फिर ये डेरिवेशन बनता है कि देखो इसका, सोचिए इसके बारे में। ये x इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू 0, इसके लिए 0 रखो, तो b इक्वल टू क्या बनेगा, देखो b0 डिवाइड बाई 2 i, ये ऐसा ही, और a स्क्वायर और ये क्यूब बन जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये बन गया ये। तो यही डेरिवेशन हमने उसी में भी किया था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। और दूसरा केस देखो यहाँ, if observation point is far away from the coil, that a is a very small as compared to x, so x can be neglected, so a can be neglected। जब इसमें से a neglect करेंगे तो क्या ये इसके साथ चला जाएगा, फिर क्या बनेगा, म्यू b0 i a स्क्वायर, ये टर्म ऐसे डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो अगर ये सर्कुलर लूप है और ये करंट कैरी करता है इस तरीके से यहाँ से, दिस इज द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इज ए गोइंग अवे और मूविंग, दिस इज आउटवर्ड, इनवर्ड। इसे प्लेन है और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जाएगा, क्योंकि करंट इन एस डायरेक्शन है। तो यहाँ कौन सा पोल होगा, यहाँ यस पोल होगा, और यहाँ एन, उसका अपोजिट साइड में एन होगा, तो फील्ड लाइंस कैसे एस टू एन जाएगा। यहाँ भी देखो, यहाँ एक लूप है, यहाँ करंट कैसे एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ कौन सा पोल है, इस साइड में एन पोल है, और ओके दिस इज द, अगर इस साइड से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे तो इस साइड से यहाँ कौन सा पोल है, एस पोल है, इस साइड में कौन सा है, एन, तो इट पासेस द एस टू एन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो आज का वीडियो लेक्चर में हमने देखा क्या क्या पढ़ा, तो डिफरेंट लॉज, रूल्स पढ़े या लॉज पढ़ा टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहले तो पढ़ा कि करंट कैरिंग कंडक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, किस डायरेक्शन में रहेगा, डायरेक्शन के लिए रूल्स पढ़े, और कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो इसके लिए बायट-शॉर्ट लॉ पढ़ा। बायट-शॉर्ट लॉ का फिर दो एप्लीकेशन पढ़े, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर कॉइल ऑन इट्स ए पॉइंट P on its axis और x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए कॉइल। इस तरीके से थ्योरी पढ़ा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, नोट्स बनाओ। अगर तुम्हें इसमें कोई दिक्कत आ गई, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ये बताना बाकी रह गया कि अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ देखो, अगर जैसे x दूर दूर जाएंगे, ये सेंटर में क्या है, यहाँ मैक्सिमम है, दिस मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। जैसे दूर जाएंगे दोनों तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इट इज ए डिक्रीजिंग अलोंग दिस ए डिस्टेंस, ये डिक्रीज होते जाएगा ना। तो ये सब बात याद रखो, ठीक से नोट्स बनाओ। तब के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।